پاکستان کی ایران کے سعودی عرب پر میزائل ڈرون حملوں کی مذمت۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان اس واقعے کی سخت دو ٹوک مذمت کرتا ہے۔ حکومت پاکستان کا سعودی عرب میں توانائی تنصیبات پر ایران کے حملوں پر گہری تشویش کا اظہار۔ پاکستان کے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ یہ حملے خطے میں امن استحکام کے لیے خطرناک ہیں۔ جنگ روکنے کے لیے پاکستان کی مثبت اور تعمیری کوششیں اہم مرحلے میں داخل۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا پاکستان کی ثالثی کے لیے کوششوں کا خیر مقدم۔ ایکس پر بیان میں کہا صورتحال تیزی سے نازک مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے، آئندہ پیش رفت کے لیے مزید تفصیلات کا انتظار کریں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی کی فراہمی اور برآمدات سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعظم کی بیٹری توانائی اسٹوریج سسٹم کے منصوبے پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بجلی پیداوار میں قابل تجدید توانائی کا مناسب حصہ ہونے کی وجہ سے توانائی بحران پیدا نہیں ہوا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے اسحاق ڈار سفارتی محاذ پر متحرک۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری اور کینیڈین وزراء خارجہ سے رابطہ۔ ڈاکٹر بدر العاطی سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی کم کرنے اور مکالمے کی اہمیت پر زور۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر نشے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے سڈنی میں گرفتار۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈیوڈ وارنر چند دنوں کے لیے پاکستان سے آسٹریلیا گئے تھے۔ وارنر کے جسم میں قانونی حد سے دگنا الکوہل پائی گئی۔ چین پاکستان کی فعال ثالثی کی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چین کا قیام امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق امید ہے متعلقہ فریق امن کے مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے، بات چیت کے ذریعے اختلافات ختم کریں گے۔ ایران کے پاس آج رات 12 بجے تک کی مہلت ہے۔ امریکی صدر نے تہران کو دی ڈیڈ لائن حتمی قرار دے دی۔ کہا مذاکرات میں کچھ بہترین ممالک ثالثی کر رہے ہیں، ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جو مجھے قابل قبول ہو۔ ڈیل نہ ہوئی تو ایک رات میں ایران کو تباہ کر دیں گے۔ امید ہے بجلی گھروں اور پلوں پر بمباری نہیں کرنا پڑے گی۔ ایران میں انفراسٹرکچر تباہ کر دیا تو بحالی میں 100 سال لگیں گے۔ اب نے ہرمز نہ کھلی تو ایران میں کوئی پل نہیں بچے گا۔ ضرورت پڑی تو ایران کے تیل پر قبضہ کر لیں گے۔ جنگی مجرموں کا دھمکی اور تباہی کا شور بڑھانا ان کی بوکھلاہٹ ہے۔ شہری ڈھانچے پر مسلسل حملے، پلوں، بجلی گھروں، سکولز اور اسپتالوں کو تباہ کرنا انسانیت کے خلاف جرم کی مثالیں ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کہتے ہیں کہ بین الاقوامی اداروں کا خاموش رہنا افسوسناک اور بے حسی ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ 14 ملین سے زائد بہادر ایرانیوں نے ملک کی دفاع کے لیے جان قربان کرنے پر اعلان آمادگی کیا ہے۔ میں بھی ایران کے لیے جان نچھاور کرنے والا رہا ہوں، اب بھی ہوں اور رہوں گا۔ ایرانی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمان نے امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیاں وہم پر مبنی قرار دے دیں اور کہا اس سے امریکہ کی ذلت اور رسوائی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ایرانی نائب وزیر کھیل کی عوام سے بجلی گھروں پر انسانی زنجیریں بنا کر ٹرمپ کو جواب دینے کی اپیل۔ ایرانی وزیر خارجہ کا فرانسیسی، ترک اور قطری ہم منصبوں سے رابطہ۔ عباس عراقچی نے کہا ٹرمپ کی دھمکیاں جنگی جرائم کا کھل کر اعتراف ہے۔ امریکہ جیسے حملے کرے گا ویسا ہی جواب ملے گا۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شدت، 12 شہروں اور 3 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ کے قریب دھماکے، یہودی عبادت گاہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ کرج کے رہائشی علاقوں پر بمباری، پردیس شہر میں ملبے سے 6 لاشیں نکال لی گئیں۔ فارس اور شیراز پیٹرو کیمیکل پلانٹس پر بھی حملے۔ IAEA کی بوشہر نیوکلیر پلانٹ پر حملے کی تصدیق، کہا پلانٹ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیل کا ایران کی MIT یونیورسٹی پر بھی حملہ۔ سعودی عرب کی الجلیل تیل تنظیم پر بڑی آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ مشرقی علاقے پر فائر 7 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے۔ میزائلوں کا ملبہ ایک توانائی تنصیب پر گرا۔
सऊदीया को बहरीन से मिलाने वाला अहम पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कुवैत के अलीउल सालम एयर बेस पर ईरान के हमले और 15 अमरीकी एहलकार जख्मी। बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात पर भी हमले। ईरान के इसराइल पर भी ताज़ा जवाबी हमले और रामादगान, बनी बुराक और दीगर इलाकों में 28 मकामात को निशाना बनाया गया। तल अबीब के करीब क्लस्टर बमों से हमला, 4 अफराद जख्मी। यमन से भी इसराइल पर दर्जनों मिसाइल हमले। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी में कमी के लिए इसहाक डार सिफारती महाज पर मुतहरिक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री और कैनेडियन वज़राए ख़ारिजा से रब्ता। डॉक्टर बदल अब्दुल आती से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कशीदगी कम करने और मुकालमे की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा को मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। अनीता आनंद की सीज़ फायर के लिए जारी कोशिशों की हिमायत। कहा, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरान से जंगबंदी ना करें, इसराइली वज़ीर आज़म का ट्रंप पर जोर। इसराइली ओहदेदार ने दावा किया, नेतन्याहू ने इतवार को सदर ट्रंप को फ़ोन किया और कहा जंगबंदी ना करें। ट्रंप ने कहा, ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज़ फायर होगा। ईरान से अफजोरदा यूरेनियम हवाले करने और आइंदा अफजोदगी ना करने के मुतालबा से दस्तबरदार नहीं होंगे। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गालियां देने पर ट्रंप से सवाल। अमरीकी सदर ने कहा, जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। नाक़दीन जो भी कह रहे हैं उन्हें कोई परवाह नहीं। ट्रंप का एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तस्करा। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने करोड़ों जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की बात ने मुझे खुश कर दिया। This is ridiculous. They gave me the Nobel Prize. President Trump ended 8 wars. I could go over every one of them, including India and Pakistan, where the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved from 30 to 50 million lives. That makes me much happier than what we're doing right now. We have one more to end. ईरान के खिलाफ जंग और धमकियों पर ट्रंप शदीद तनकीद की ज़र्द में। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है कि जंगी जराइम शुरू करने की ट्रंप की धमकियों में शिद्दत आई। ईरानी तंजीबात पर हमला हज़ारों बेगुनाहों की जान ले सकता है। ट्रंप के करीबी अफराद उन्हें जंगी जराइम से रोकें। रुकने कांग्रेस यास्मीन अंसारी का वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ के मवाक़ज़े की करारदाद पेश करने का ऐलान। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा, ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। मशरिक़ वस्ती की गैर यकीनी सूरत हाल के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI की कीमत कम होकर $111 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूज $108 फी बैरल से तजावुज़। UAE मरबन की $118 से ऊपर ट्रेडिंग। ईरान जंग शरह नमू में कमी अफराते सर में इजाफे का सबब बनेगी। IMF ने खबरदार कर दिया। IMF MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है, जंग ना होती तो शरह नमू में इजाफे का तखमीना था। जंग तवील हुई तो अफराते सर और शरह नमू पर असर पड़ेगा। कुछ ममालिक की जानिब से माली मुआवनत की दरख्वास्तें मिली हैं। कर्ज के कुछ मौजूदा प्रोग्रामों को बढ़ा सकते हैं। नेशनल टैरिफ कमीशन में केसेस की ताख़ीर किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल टैरिफ कमीशन पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, NTC की कारकर्दगी मुल्की सनत और सरमायाकारी में इजाफे के लिए नागुज़ीर है। कमीशन की तमाम सरगर्मियों को डिजिटलाइज करके शफाफियत और मेयार को यकीनी बनाया जाए। अफरादी क़ुव्वत और अमला बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक तरबियत शुदा होना चाहिए। वज़ीर आज़म से तुर्की की आईनी अदालत के सदर कादर उज़ाकिया के वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात जामे माशी शराकतदारी की जानिब गामज़न हैं। इंसाफ तक रसाई के लिए पाकिस्तान और तुर्की तजर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। तुर्क वफ़द का पाकिस्तान में शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कादिर ने कहा कि बेहतरीन मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं और मफाहमती याददाश्तों से दोनों ममालिक को भरपूर फ़ायदा होगा। कौमी असम्बली के इजलास में नवीद कमर का नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब में कहा, हम 35 साल पहले की गई कमिटमेंट्स के पाबंद हैं।
हमें सारे मुआहदों का ख्याल रखना है। हाथ पांव इन मुआहदों की वजह से बंधे हुए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स हमें करना पड़ती हैं। वज़ीर मुमलिकत शजरा मनसब ने कहा, हुकूमत ने सोलर को प्रमोट करने के लिए पॉलिसियां बनाई थीं। क्लीन एनर्जी की हम हौसला अफजाई करते हैं। दरामद कोल को पावर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें बैलेंस कायम करना है। इस वजह से नई पॉलिसी आई है। £190 मिलियन केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी से सलमान सफ्तर की कल 2 बजे मुलाकात कराने का हुक्म दे दिया। बानी के वकील सलमान सफ्तर ने कहा, 31 मार्च को अदालत ने एक ऑर्डर पास किया था। चीफ जस्टिस ने कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात की मुतफरिक दरख्वास्त मंजूर कर लेते हैं। आप जाकर बानी पीटीआई से मुलाकात कर लें। जेल हुकाम को मुलाकात कराने की हिदायत समाअत जुमेरात तक मुलतवी। पंजाब भर में बाजार, मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन जारी। मैरिज हॉल्स, मार्केट्स और दीगर कमर्शियल पॉइंट्स 10 बजे के बाद बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी प्रॉपर्टीज और घरों में भी शादी ब्याह की तकरीबात के लिए 10 बजे की डेडलाइन। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, तनूर, बेकरीज और मिल्क शॉप्स पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल होगा। पंजाब हुकूमत का 17 अजला में मुफ्त ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। गुजरांवाला, मुल्तान और सियालकोट में पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पीरा फोर्स को LPG के निर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। मरियम नवाज को ओपन ड्रेनेज से अमवात के वाक़यात पर इजहार बरहमी। कमिश्नर्स को रोज़ाना तस्वीर और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि गैर महफूज जोहड़ की मौजूदगी DC की नाकामी समझी जाएगी। सिंध हुकूमत का आवाम के रिलीफ के लिए 35 अरब रुपए का पैकेज। पेट्रोल सब्सिडी के लिए 15,000 मोटरसाइकिल सवारों के कवायफ जमा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फीस भी माफ़ कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वालों को भी सब्सिडी दी। किसानों को फ़ी एकड़ 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। सानेहा गुल प्लाजा कराची की अदालती तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट हुकूमत सिंध के हवाले जुडिशल कमीशन सरबराह ने सील शुदा रिपोर्ट सेक्रेटरी कानून की सबूत कर दी। जस्टिस आगा फैसल का कहना है कि कमीशन अरकान ने अनथक मेहनत की। मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। सेक्रेटरी कानून का कहना है कि रिपोर्ट पब्लिक करने या ना करने का फैसला हुकूमत करेगी। गुल प्लाजा में आतिशबाजी के बाद 73 शहरी जाम बहक हुए थे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सखी हसन सड़क की बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहा, मंसूबे पर 1 करोड़ 38 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की लागत आएगी। सखी हसन सड़क को जदीद डबल कैरेज वे में तब्दील किया जाएगा। निकासी आपके निज़ाम की बेहतरी से शहरियों को रिलीफ मिलेगा। सिंध में मंकी पॉक्स का रवां साल में दूसरा केस सामने आ गया। आगा खान अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज में वायरस की तस्दीक। एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू में डॉक्टर फातिमा मीर ने बताया कि मुतासरा शख्स खैरपुर का रिहायशी है। खैरपुर समेत दीगर इलाकों में मुश्तबा केसेस की तहकीकात जारी हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम हैदराबाद से गिरफ्तार। 2 रोज़ा रिमांड मंजूर। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम को हैदराबाद के इलाके सिटीजन कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम लड़कियों को काम के लिए दुबई भिजवाकर इस्तेहसाल का निशाना बनाता था। मकबूजा कश्मीर में 7 दिहाइयों से जुल्म का बाजार गर्म है। भारत कश्मीरियों की शिनाख्त कभी ख़त्म नहीं कर सकता। कश्मीरी कायदीन को बेदर्दी से शहीद किया गया। आज़ाद कश्मीर के कायम मकाम सदर चौधरी लतीफ़ अकबर का कौमी पैगाम अमन कमेटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में कौमी यकजहती की फ़ज़ा मजबूत हुई। अमन कमेटी ने तमाम मकातिब फ़िक्र को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश खुनकी बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। सरगोदा, मियाँवाली, भक्कर, साहिवाल, विहाड़ी, बूरेवाला, अहमदपुर, शर्किया, शेखुपुरा, पाकपतन में बारिश। मलका कोसार मरी में रात से बारिश का सिलसिला जारी। झींगा कली लैंडस्लाइडिंग से मुतादिद मकानात ज़मीं बोस, पेशावर, मर्दान, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। नूरपुर, थल
اور ٹھرکی گڑھ مہاراجہ میں بھی بادل جم کر بسے. نیلم، مظفر آباد، باغ سمیت آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں بارش کا سلسلہ جمعرات تک جاری رہنے کی پیش گوئی.